स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स बाई वाकर 10th एडिशन चैप्टर नंबर 21 के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स कनेक्टिंग स्फीयर फिक्स्ड इन प्लेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन दे हैव अपोजिट चार्जेस with an electrostatic force of 0.108 Newton. So the force magnitude is 0.108 Newton. This is the magnitude of the force, and they are opposite force charges. So Q1, Q2 will be negative here, because product when they are opposite charges they attract, so their product will be negative. Their center to center separation is 50 centimeters. So their separation is 50 centimeters. The spheres are then connected by a thin conducting wire. When the wire is removed, the sphere repel each other. Now they repel because जब एक दो अपोजिट चार्जेस को आप एक थिन वायर से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज स्फीयर होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो उस वक्त तक काम चलता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज जो बराबर नहीं हो जाएगा और दोनों पे सेम चार्ज हो जाएगा। तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. A wire is removed now and the force of repulsion is 0.0360 Newton. So of the initial charge on the sphere with positive net charge, what was the negative? Positive net charge means the bigger charge is positive and smaller charge is negative. Okay, so we have to find the negative charge one because initially they were attracting each other. So one of them will be negative charge and second will be a positive charge. We have to find the initial charge on the two spheres. So let's start it. We suppose that Q1, Q2 be the initial charge on the two spheres and F1 be the force of attraction between them. But they are the attraction force means they are opposite charges. So Q1, Q2 product will be negative. We put negative here. So F1 is given as 0.108 Newton and R is given as 50 centimeter, which can be converted to meters by dividing 100, and it comes out to be 0.5 meter. So putting the values, we get F1 is 0.108 and is equal to -1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 over minus is because they are opposite charges, so product will be negative, over R square. R is 0.5, so 0.5 square. So we solve that. Plug in the values of 1/4 pi epsilon naught is 9 Newton plus 9. So and this 0.5 will be shifted toward the other side, so it will be multiplied here. So we get minus, and this minus here. So we can write the minus 0.108 into 0.5 square is equal to 9 into 10 power 9 into Q1 Q2. We simplify it to get Q1 Q2 product as equal to minus 3 into 10 is power 12 Newton. Newton, sorry, it will be Coulomb square actually. I don't write do not here because we have to solve Q1 and Q2 separately. Now suppose these are two connecting spheres. They have been connected by a connecting wire. So from here charge will start moving towards the Q2 and it will be continuous moving unless they have the equal charge or equilibrium. Equilibrium will be gained when their charge will be equal, and that will be equal to the average of the both of the charges. Let's suppose one of the charging sphere is 1 coulomb, is 3 coulomb, and second is 5 coulomb. So now when they become equal? They will become equal when the 3 coulomb will become 4 coulomb and 5 coulomb also become the 4 coulomb. मैंने जब 3 coulomb वाला स्फीयर है उसमें भी 4 coulomb चार्ज आ जाएगा, दूसरे भी 4 coulomb. अब 4 किसके बराबर है? 4 बराबर है 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 5 over 2 is equal to 8 होता है. तो it means the equilibrium will be gained when the charge on them will be equal to the average of their sum, that is Q1 over Q1 plus Q2 charge will be on this sphere, and Q1 plus Q2 divided by 2 charge will be on this sphere too. So we use this technique here to get the F2, the magnitude of the repulsive force, equal to F2 is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 plus Q2 over 2 into ये पहला चार्ज है, दूसरे पे चार्ज होगा Q1 plus Q2 over 2 and
divided by the separation. Separation is same as r square. So F2 will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 plus Q2 over 2 into Q1 plus Q2 over 2. ये दो चार्जेस हो गए ओवर आर स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें देखें ये दोनों सेम है तो बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और R की वैल्यू 0.5 होने मुझे पता है ये पुट कर देंगे और 1 over 4 pi epsilon naught की वैल्यू भी 9 × 10⁹ है और F2 कितना है वो गिवन है 0.0360 न्यूटन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास आ जाएगा ये Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर की तरफ रह जाएगा बाकी इसको भी इधर ले डिवाइड हो जाएगा ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10⁻12। हमने निकालना है हम ये हमारे पास हमने क्या निकालना है हमने निकालना है Q1 प्लस Q2 तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे जब अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और जो 10 पावर -12 है उसका अंडर रूट 10 पावर -6 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10 रेज़ टू द पावर आ जाएगा 2 × 10 रेज़ पावर -6। अब ये Q1 प्लस Q2 आ गया हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हमारे पास दो वेरिएबल है इनको हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली जिस तरह हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे आपने एफएससी में सीखा होगा छोटी क्लासेस में कि आपके पास अगर एक इक्वेशन है x प्लस वाई ये लीनियर इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है हम लीनियर से वैल्यू निकालते थे एक वेरिएबल की उसको क्वाड्रेटिक में पुट करते थे तो यहाँ से Q1 की या Q2 की वैल्यू निकालें फर्स्ट करें Q2 की निकालें पहले हम Q1 निकालना चाहते हैं तो Q2 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या होगा Q1 इधर आकर माइनस हो जाएगा हमारे पास Q2 आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 माइनस Q1 ये हमने 2 से निकाली इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर दें और इसकी ये वैल्यू जो है इसको प्लग इन कर दें किसमें इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 क्या था ये थी Q1 × Q2 इज इक्वल टू दिस तो Q2 की वैल्यू पुट कर दी Q1 × Q2 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर इज इक्वल टू -3 × 10⁻12। अब Q1 को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻6 Q1 माइनस Q1 × Q1 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 × 10⁻12। इसको हमने रीअरेंज करें रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको -Q1 को उठा के इधर प्लस हो जाएगा इसको उठा के इधर ले जाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा Q1 स्क्वायर माइनस 2 × 10⁻6 Q1 और ये पहले से माइनस है -3 × 10⁻12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वो वाली इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Q ये किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है Q1 में है दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन Q1। सो इसको हम यहाँ से हम Q1 को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है। हम यहाँ पर a देखें जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट उसको हम a कहते हैं तो a यहाँ पर 1 है ये जो चीज़ है ये -2 × 10⁻6 ये हमारे पास b है और ये -3 × 10⁻12 क्या है c है हमारे पास। तो यहाँ से हम Q1 एंड Q1 निकाल सकते हैं क्या फार्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर -b जब माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 × 10⁻6 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह -2 × 10⁻6 का स्क्वायर है अब माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं लिखना चाहे तो भी खैर है क्योंकि स्क्वायर से माइनस वो ख़त्म ही हो जाएगा -4ac -4 × a की जगह 1 इस जगह -3 है वो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा मैंने +4 लिखा है तो बनेगा 4 × 1 × 3⁻12 ओवर 2a 2 × 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपका Q1 हमारे पास आता है 2 × 10⁻6 और ये चीज़ है रूट के अंदर ये बनती है 4 × 10⁻6 तो बन जाएगा 2 × 10⁻6 प्लस माइनस 4 × 10⁻6 ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर सकते हैं माइनस के साथ अगर प्लस के साथ सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 3 × 10⁻6 कूलम और माइनस का सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है Q1 = -1 × 10⁻6 कूलम। आपने Q1 को नेगेटिव के लेना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारे पास Q1 आ जाएगा -1 × 10⁻6 कूलम ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 3 से पुट करें इक्वेशन नंबर 3 क्या थी इक्वेशन नंबर 3 थी Q2 = 2 × 10⁻6 माइनस Q1 की ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगा 2 × 10⁻6 माइनस -1 × 10⁻6 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा तो आपके पास 2 + 1 3 तो Q2 बन जाएगा
3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हमारे पास Q1 था -1 इंटू 10⁻�6, इसको हम लिखते हैं -1 माइक्रो कूलम, एंड Q2 हमारे पास आया 3 इंटू 10⁻�6 एंड Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। सो इनिशियली द चार्ज ऑन वन स्फीयर इज -1 माइक्रो कूलम एंड सेकेंड इज 3 माइक्रो कूलम। इसको नेट चार्ज निकालेंगे, दोनों को प्लस माइनस करें तो दोनों नेट चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सो हमारा आंसर इज करेक्ट। सो this is the answer of question number 9. So I stop here. In next video we will solve more questions, so stay tuned to Believe Physics. If you are new to my channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon so that you can get all the notification of my coming videos. Thank you. Allah Hafiz.